Dear students, today we are going to learn English grammar. And in English grammar, first of all, we'll learn tenses. Before we start to learn tense, we have to clear what are the verb forms because it is very necessary to understand and to clear verb forms and types of verbs because there are two types of verbs. They are regular and irregular, and some other forms are also there. But in respect of tenses, we have to learn today uh, these two types of verbs, and then we'll start learn tenses. So let us start verb forms. So let us start tense here. But before we learn tenses, it is necessary to understand what is verb and what are the regular verbs and what are the irregular verbs. So, verb is an action word. Action word means a word in a sentence which suggests an action or which denotes an action that is called a verb. Now, let us see regular and irregular verbs. So, when we transform the sentences from present form into past form and past form into past participle, we should understand it very well that what are the regular verbs, they can be used in all these three forms, and what are the irregular verbs, they can be used in all these three forms. Now let us see first of all regular verbs. So here walk is a root form of the verb that can be used in a present form. But when we transform this verb into past form, for example walk, so we suffix ed just after this verb and it will be converted into past form. That means what we are doing here, this is a verb walk and we put ed or d after a verb and it will be converted into past form, and in the same way it will be converted into past participle. In case of paint, the same, painted in past participle, painted. The same, play, root form of the verb, ed is suffixed here and it will be played in past form and it will be played in past participle. In the same way, laugh, we add ed and it will be laughed, and in past participle it will be laughed. That means when you transform the sentence or a verb from present form into past form and from past form into past participle, you suffix d or ed just after the verb in a regular way, so it is called regular verb. Now, what is irregular verb? So here take an example, write. Now you cannot put ed or d just after this verb because it is irregular, so it is not possible here. So what we should do? So you have to transform whole form into wrote and here in written. That means whole word is changed into wrote and written, and it is irregularly, it happens irregularly, so they are called irregular verbs. Let's take an example of come. So here come is a root form of the verb and it is used in present form as present form. When we use it as past form, it will become
came, and in past participle it will be come. Now D or ed, as I said before, not applied here in irregular verbs, and irregularly these verb forms are changed, so they are called irregular verbs. तो यही हमने समझा कि वर्ब क्या है. तो वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है, यानी कि ऐसा वर्ड कि जो सेंटेंस में एक्शन बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स हमने समझा. उसमें जो भी वर्ब का रूट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल वॉक है, पेंट है, प्ले है, लाफ है, उनके पीछे हम डी और ईडी सफिक्स करके उसे पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में ले जा सकते हैं, बना सकते हैं. और इरेगुलर वर्ब्स जो है, जैसे कि राइट, कम, बाइट, ब्रेक, तो राइट का हम रॉट करेंगे पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में रिटर्न करेंगे. उसी प्रकार कम का पास्ट फॉर्म में केम करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में कम करते हैं. बाइट का बीट करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल में बीटन करेंगे. ब्रेक जो है उसका हम ब्रोक करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम उसको ब्रोकन करेंगे. तो इस प्रकार से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है उसका फर्क हमें मालूम पड़ता है. वर्ब समझने के बाद अब हम सीखते हैं टेंस. सो व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स टाइम, and time is divided into three parts: present, past and future. You can see this is the line of time, and it is divided into three parts: past, present and future. That means it is bhut, it is vartaman and it is bhavishya. Bhutkal, vartaman kal and bhavishya kal. In three parts it is divided. What is divided? Time is divided. At present, whatever the thing that we are doing or we are living in present, ये जो है ये वर्तमान समय है, जिस समय में हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वर्तमान समय है. दैट मीन्स ये पॉइंट इधर आता है. पास्ट, दैट मीन्स वॉट एवर द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव डन और what happened in our life, that becomes past. ये भूत बन जाता है, ये पास्ट बन जाता है कि हमारे जीवन में इस समय, यानी कि ये जो वर्तमान है उसके पहले जो कुछ भी हो गया वो सब पास्ट है. एंड इन फ्यूचर वॉट एवर विल बी हैपनिंग इन अवर लाइफ और वी आर गोइंग टू डू इज फ्यूचर. इसका मतलब है कि भविष्य में हम जो कुछ भी करने वाले हैं या जो भी हमारे जीवन में होगा, ये पॉइंट के बाद, चाहे वो 1 सेकंड के बाद हो, चाहे 1 मिनट के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे कितने भी साल के बाद हो, तो वो सब फ्यूचर है. तात्पर्य ये है कि अभी का जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे फ्यूचर होता जाएगा और फ्यूचर है वो धीरे धीरे प्रेजेंट होता जाएगा और पास्ट तो ऑलरेडी जो हो चुका है वो है. तो ये 3 हिस्सों में हमने समय को बांट दिया है. दैट मीन्स वी हैव डिवाइडेड टाइम इनटू 3 पार्ट्स. अब जब हम टेंस सीखना शुरू करेंगे तो टेंस को, ये जो मेन 3 पार्ट्स है उसको भी अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये जो सारे टेंसेस है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए. फॉर एग्जाम्पल सिंपल, कंटिन्यूअस, perfect and perfect continuous. So you can say simple present,
present continuous, present perfect, and present perfect continuous. In same way, you can say simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In same way, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. That means it will become 12 tenses from simple present tense to फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो पहला फॉर्म है वर्ब का वो, जैसे कि प्ले, तो प्ले ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर उसका प्लेड हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला में 3 स्टेप हम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल है मोहन प्लेज क्रिकेट। दैट मीन्स मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब ये है कि मोहन अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन वो रेगुलरली या तो हैबिचुअली वो क्रिकेट खेलता है, वो हम देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ है वो हम किस सिचुएशन में करते हैं? तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि ऐसी एक्शन की जो हमारी हैबिट हो या तो रोज़ बरोज़ की हमारी क्रिया हो, जैसे कि एवरीडे मॉर्निंग उठना। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हमारी हैबिट हो गई। दूसरा, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो हर रोज़ सुबह चाय पीता है। तो एवरी दैट मीन्स हर रोज़ की बात है, मॉर्निंग यानी कि हर मॉर्निंग की बात है। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन हो गई। तो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, यानी कि सनातन सत्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि हनी इज़ स्वीट, तो हनी यानी मधु, वो कैसा है? तो मीठा है, यानी कि स्वीट है, तो उसको कोई जुठला नहीं सकता। मतलब ऐसी चीज़ें कि जिनको जुठलाई नहीं जा सकती है, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इस सनातन सत्य को जुठलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इस सनातन सत्य को भी जुठलाया नहीं जा सकता है कि हर रोज़ सूर्योदय पूर्व में ही होता है। तो ऐसे जो सनातन सत्य है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो फॉर्मूला है उसको हम याद रखेंगे तो वो टेंस हमें समझ में आ जाएगा, और उसका यूज़ कहाँ होता है वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मोहन प्लेज क्रिकेट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लता सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन राइट्स अ लेटर, आई प्ले पियानो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। लेट अस सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। The formula of present continuous tense is subject plus am is are plus verb plus ing plus object। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी फॉर्म्स आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म से एम, इज एंड आर, इनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद लगेगा आई एन जी, दैट मीन्स कि ये वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेम सेंटेंस को हम इस टेंस में भी यूज़ करते हैं। मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ जो हमने एम, इज़, आर यानी कि ऑक्सिलरी फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर ये आधार रखता है कि यहाँ इज़ आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। यहाँ पर मोहन है इसीलिए इज़ है, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ एम आता।
और यहाँ पर अगर दे होता तो यहाँ पर आर आएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया? तो ये है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर कैसे हम करते हैं, किस लिए होता है। तो सबसे पहला इसका यूज है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस वक्त हम जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जिस एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, वो एक्शन उस समय हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब है कि जब हम बोल रहे हैं तब मोहन क्रिकेट खेल रहा है। जैसे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। मतलब इस समय हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। यू कैन सी द फॉर्मूला ऑल्सो, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसका यूज हम करेंगे। दूसरा इसका यूज है फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि हम कहेंगे आई एम रीडिंग द गीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी इसका मतलब ये नहीं भी होता है। कभी कभी जैसे कि हम हर रोज़ गीता पढ़ते हैं, एवरीडे 1 घंटा अगर हर रोज़ हम गीता पढ़ते हैं तो उसको सिंपल प्रेजेंट में भी हम लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी बोलचाल की लैंग्वेज में ऐसे भी इसको यूज़ किया जाता है कि आजकल मान लो कि कोई पूछ रहा है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि आजकल मैं फ्री हूँ तो मैं गीता पढ़ रहा हूँ। दैट मीन्स उस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग गीता, आई एम रीडिंग द गीता। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि आप उस एक्शन को डे बाय डे कर रहे हैं या कुछ टेम्पररी टाइम के लिए आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी उसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म्स, ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स, वर्ब विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट फार्मूला के साथ। नाउ लेट अस सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस verb 3. Verb 3 means past participle form of the verb. It is called verb 3. We write sometimes V1, V2 and V3. V1 means present form of the verb, V2 means past form of the verb and V3 means past participle of the verb. So here I write verb 3, that means past participle form of the verb and object. Now see the example. Mohan has written a letter. यहाँ पर हम हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। अगर यहाँ मोहन की जगह आई है तो हम हैव लिखेंगे, यू है तो हम हैव लिखेंगे, दे है तो हम हैव लिखेंगे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लिखेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। बाकी दूसरे केसेस में हम इसका हैव के रूप में यहाँ पर यूज़ करेंगे। रिटन, ये V3 है, V3 दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोहन हैज़ रिटन अ लेटर, यानी कि ये फॉर्मूला के हिसाब से ये सेंटेंस यहाँ पर एकदम ठीक बैठ जाता है। सब्जेक्ट मोहन, हैव हैज़ written, verb 3 past participle form and later object. Mohan has written a letter. This sentence is in present perfect tense. अब हमें ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़
हम कहाँ पर करते हैं या तो कैसी सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है? तो सबसे पहले द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट यानी कि ऐसी कोई एक्शन कि जो तुरंत ही पूर्ण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इमीडिएट पास्ट यानी कि तुरंत के भूतकाल में खत्म हो चुकी है, कि जिसकी इफेक्ट अभी भी चालू है। तो ऐसी एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी कि वो अभी अभी बाहर गया। जैसे कि हम 4-5 दोस्त एक ही जगह पर बैठे हैं और एक दोस्त उसमें से कहीं बाहर चला जाता है, तो कोई व्यक्ति आकर के पूछता है कि XYZ व्यक्ति कहाँ गया, तो हम कहेंगे कि वो अभी अभी बाहर गया। दैट मीन्स ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, मान लो कि अभी 10 बजकर ऊपर 5 मिनट हो गया या 2 मिनट हो गया, तो हम कहेंगे कि अभी अभी 10 बजे हैं। तो इस एक्शन को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट। हैव यू रीड द रामायण, मतलब जिसका समय डेफिनाइट नहीं है, तय नहीं है। ऐसी पास्ट एक्शंस की जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हैव यू रीड द रामायण, क्या तुमने रामायण पढ़ी है, मतलब कि उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या वो पढ़ रहा है अभी, या पढ़ करके उसने पूर्ण कर ली है, या भूतकाल में पढ़ी है तो कितने समय पहले पढ़ी है, वो सब चीज़ें हमें पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब कि एक कार्य जो था वो मैंने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण हो चुका है, उसको दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको हम काफ़ी समय पहले से कर चुके हैं और उसकी इफ़ेक्ट अभी भी चालू है। तो ऐसे केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब plus ing plus object. Let us see the same example. Mohan has been writing a letter. Now this is subject. Have has is taken here. Been, write plus ing means writing a letter. तो ये हो गया इसका फार्मूला। इस फार्मूला को हमें याद करना है, तब जा करके हम इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सब्जेक्ट हैव हैज, बीन, verb plus ing plus object is the formula of present perfect continuous tense. Now let us see what are the usages of this tense. तो सबसे पहला यूज है, the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसी एक्शन, कोई भी एक्शन पास्ट के किसी एक पॉइंट में शुरू हुई है। फॉर एग्जांपल ये टाइम की रेखा मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये प्रेजेंट है और ये पूरा पास्ट है, बराबर। अब कोई एक ऐसी घटना यहाँ से शुरू हुई और वो यहाँ तक आई, और भविष्य में भी आगे कब तक चलेगी पता नहीं, या पता है तो उसकी फिक्स डेट होगी, लेकिन वो ख़त्म होगी भविष्य में। अभी तो ये कंटिन्यू है। तो ऐसी किसी एक्शन को दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। समझते हैं। लेट अस सी, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, यानी कि वो पिछले 5 घंटों से सो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से किसी ने सोना शुरू किया और यहाँ पर उसको 5 घंटे हो गए, और अभी भी शायद वो 6 घंटे सोए, शायद वो 7 या 8 घंटे सोए, वी डोंट नो। लेकिन जो स्लीपिंग की घटना आज अभी से 5 घंटे पहले शुरू हुई थी, वो घटना अभी भी चालू है और भविष्य में भी कुछ समय तक
या लंबे समय तक रह सकने की संभावना है, ऐसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अनदर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पर उन्होंने खेलना शुरू किया। कब से शुरू किया? तो 4 बजे से शुरू किया। तो उसमें यहाँ पर सिंस और फोर, ये दो प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, लेकिन फोर का यूज़ कहाँ होता है और सिंस का यूज़ कहाँ होता है? तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कि 4 o'clock, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और 5 आवर्स यानी कि एक जो टाइम है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पता है कि 1 साल हुआ या 2 साल हुआ या 4 साल से या 5 साल से या 5 घंटे से, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि पास्ट में कोई घटना शुरू हुई है और वो उसकी अभी भी वो घटना चालू है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के, वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस 14th जून। तो यहाँ पर 14th जून को उनके पढ़ने की घटना शुरू हुई, इनके पढ़ने की घटना शुरू हुई, और वो घटना आज 20th जून को भी चालू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसकी ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला, तो ये 4 टेंस हमारे हो गए प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस के फॉर्मूला हम सीख चुके हैं और उस फॉर्मूला को हमें याद करना है और उसका यूज़ किस सिचुएशन में होता है उसको हमें याद रख लेना है। तो हमें ये चारों टेंस जो है वो समझ में आ जाएंगे। दूसरा कि कोई भी टेंस जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ने आपने स्टार्ट किया, तो उसमें एक ही एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि मोहन हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ये एग्जाम्पल लीजिए और उसी एग्जाम्पल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखिए एंड सिंपल प्रेजेंट में भी लिखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस लेता हूँ, लता सिंग्स अ सॉन्ग। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, बराबर। अब इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कन्वर्ट करेंगे, बराबर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब उसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, लता हैज़ संग अ सॉन्ग। और उसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कन्वर्ट करेंगे, लता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से चारों टेंस में एक ही सेंटेंस को कन्वर्ट करते रहने से बार बार आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसा एक सेंटेंस नहीं, लेकिन ऐसे आप 10 सेंटेंस लीजिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और उन 10 सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बारी बारी से कन्वर्ट करते रहें उसके फार्मूला के साथ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टेंस का कौन सा फार्मूला है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को सीख लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया वैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। 10 सेंटेंस लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उन 10 सेंटेंस को आप बारी बारी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करिए, प्रेजेंट परफेक्ट में उसको ट्रांसफॉर्म करिए और उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको ट्रांसफॉर्म करिए। साथ में फॉर्मूलाज भी उतने ही बार आप लिखते जाएंगे तो आपको वो सारे फॉर्मूला याद रह जाएंगे, सारे टेंसेस याद रह जाएंगे। उन सभी टेंसेस के यूजेस कहाँ होते हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आज हमने प्रेजेंट टेंस
के चारों टेंस सीख लिए हैं। अब पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 जो टेंस है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीख लेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।